Moving on, some breaking news coming in from Jammu and Kashmir. Union Minister Jitendra Singh is en route to Jammu and Kashmir, sharing a scenic helicopter flight from Srinagar to Sonmarg, accompanied by Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah. The minister is heading to the Menu for the inauguration of the landmark Z-Mode Tunnel by Prime Minister Narendra Modi. This project is set to significantly enhance connectivity in the region. So viewers, you can take a look at that visual. That's the scenic helicopter ride en route to Jammu and Kashmir for the Z-Mode Tunnel inauguration that Prime Minister Narendra Modi will be inaugurating. We have with us my colleague Ajay Jandial joining us on the telecast. Ajay, now we're seeing that this Z-Mode tunnel is set to be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. What are the details that are coming in? It has the security been ramped up, and now we're also seeing that Jitendra Singh is en route to Jammu and Kashmir for the inauguration as well. Yes, definitely it's a, matter of pride for a nation as well, and for Jammu and Kashmir, because this major project which was started, a few years back to ensure that Ladakh will be connected to the rest of the Jammu and Kashmir and with the part of the country, for all the season. That tunnel is also going to ensure, because two major tunnel projects were started. One is Z-Mode tunnel and another is Zojila tunnel, which for which under construction is going on, and this Z-Mode tunnel has been completed by the railway engineer, by the NHA highway engineers, and now this project is going to be inaugurated by the Prime Minister today. Dr. Jitendra Singh tweeted that he is flying to Sonmarg for this inauguration of Z-Mode tunnel, and definitely it is going to boost the tourism, as well as it is going to help the local stores who reside over there in that region. And after this is the first phase, and in the second phase, it is expected that Zojila Pass tunnel will also be completed soon, and that will give all weather, connectivity to the Ladakh with Jammu and Kashmir and rest of the country. Okay, all right. Ajay Jandial, thank you so much for joining us on the telecast. Meanwhile, my colleague Ashik Mir has filed a ground report from the spot ahead of the inauguration of Z-Mode tunnel. Let's take a look at that. मौजूद है श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण ये हाईवे है। और यहाँ पर जो है आज एक टनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फिलहाल इस रोड की सिग्निफिकेंस आपको बता दें कि ये रोड जो है श्रीनगर को लेह यूनियन टेरिटरी यानी लद्दाख की यूनियन टेरिटरी से कनेक्ट करता है। और बिल्कुल मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे कि तस्वीरों के जरिए बिल्कुल ऐसे ही पहाड़ है, और इन पहाड़ों को चीर कर ये टनल जो है बनाया गया है, ताकि आम लोगों और जो स्थानीय लोग, जो पर्यटक यहाँ पर खासतौर पर सोनमर्ग वैली घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए राहत का कार्य ये बने। फिलहाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इस टनल का उद्घाटन करने वाले हैं, और किस तरह के सिक्योरिटी इंतजामात यहाँ पर रखे गए हैं। अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें तो सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती जो है वो अमल में लाई गई है, और चप्पे चप्पे पर इस तरह के सिक्योरिटी नाके, चेक पॉइंट्स जो है कायम किए गए हैं। लगभग 11:30 बजे के करीब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो टनल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ इस टनल पर काम करने वाले वर्कर्स से भी वो मिलेंगे, और उसके बाद जो है एक भारी जनसभा को भी वो संबोधित करने जा रहे हैं। लगभग 6.5 किलोमीटर का ये पैच जो है बनाया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण पैच है। जब भी यहाँ पर सर्दियां होती थी यानी बर्फबारी होती थी, तो ये रोड जो है कट ऑफ रहते थे, एक यूनियन टेरिटरी जो है कट ऑफ रहती थी। लेकिन इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो है ये टनल बनाया गया है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसके अलावा भी एक और टनल जो है, जो 14 किलोमीटर का पैच जो है वो बताया जा रहा है कि 2028 में कंप्लीट होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जोजिला में जो लोग फंसते थे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब वो राहत का कार्य जो है बार बार हो रहा है, यानी जिस हिसाब से यहाँ पर
बड़े बड़े प्रोजेक्टों का शिलान्यास हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्टों का उद्घाटन हो रहा है और 26 जनवरी को भी एक बड़ी डेवलपमेंट जो है कश्मीर घाटी को देखने को मिलेगी, जिसमें वंदे भारत यानी देश की सबसे बड़ी ट्रेन जो है वो कश्मीर घाटी पहुंचने वाली है। लेकिन आज का दिन जो है कहीं ना कहीं आज का दिन हिस्टोरिक माना जाता है, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है जिसके लिए खुद प्राइम मिनिस्टर यहां पर पहुंच रहे हैं। और कल हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि किस तरह की अरेंजमेंट्स यहां पर की गई है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह यहां पर जो है सिक्योरिटी की तमाम तर जो टीम्स है, सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं वो यहां पर रखे गए हैं और हर एक को फ्रिस्किंग की जा रही है, क्योंकि इस उद्घाटन के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एक भारी जनसभा को भी संबोधित करने जा रहे हैं। एक हिस्टोरिक कदम देखा जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ यूनियन मिनिस्टर्स की भी काफी ज्यादा अगर हम देखें तो नितिन गडकरी वो भी यहां पर आ रहे हैं। और फिलहाल यहां से तस्वीरों के जरिए फिरोज आपको दिखाएंगे कि किस तरह की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स यहां पर रखी गई है। और ये वो पहाड़ है और इन पहाड़ों को चीर कर ये टनल जो है बनाया गया है। और इसके अलावा अगर हम जोजिला हाईवे की बात करें जो कि श्रीनगर लेह को कनेक्ट करता है, एक हाईवे है और इस हाईवे की महत्वपूर्ण ये है कि ये सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफ़ी अहम है। यानी जब भी यहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से तनाव बढ़ता है तो इन हाईवेज पर काम जो है ज़्यादातर सिक्योरिटी के जो वाहन है वो चलते रहते हैं। फिलहाल ये टनल का उद्घाटन जो है अब से कुछ देर के बाद होगा, जहां पर खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ सोनमर्ग से आशिक मीर। All right, now